morning, students. Okay, in the last class we have completed a topic, that is rate of unemployment. So rate of unemployment means it is a ratio of the number of the unemployed person to a labor force. ठीक है, लेबर फोर्स में जो टोटल लेबर फोर्स है उसमें कितने पर्सन ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं. तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ unemployed person divided by labor force into 100, so that we can calculate the value of rate of unemployment. Next topic what we have studied, the worker population ratio. So worker population ratio simply means a workforce divided by the total population of the country into 100. Okay, so that we can calculate the worker population ratio, and if this ratio is higher, it means that the people are more people or the more population of the country is doing the work, as well as their engagement of the people is greater, means जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. इफ़ दिस रेशियो इज़ मीडियम और लो, अगर वो रेशियो क्या होगा, मीडियम और लो का, इट मीन्स दैट कि हायर प्रोपोर्शन जो भी है पॉपुलेशन का वो क्या है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दी वर्किंग. ओके, वो लोग कोई भी वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं है, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, as well as they are not participating in the economic activities. वो economic activities में participation नहीं कर रहे हैं. Okay, so we were discussing all these topic, as well as we have also started a new topic, that is distribution of employment. Distribution of employment on the basis of the gender, region and the different sectors of the economy. So distribution of employment by the gender we have already discussed in the class, that in the last class, that the distribution by gender is divided into three, that is self employment, casual wage work or the regular salaried work. Okay, so we were compare between the male worker and the female worker, because here we are talking about the distribution of the employment by the gender. So in gender, male and female work comes, so that we can identify the number of person of the one who are doing the job and the one who are somewhere employed. Okay, कहीं ना कहीं वो क्या हैं, employed हैं. तो ये we have already discussed. Now the next one is distribution of the employment by the region. Region means whether it is from the rural areas or from the urban areas. Okay, so we will discuss this. Distribution of the employment by the region. So the above chart shows that self-employment, casual wage work or the regular salaried work. Okay, let's see in that diagram, that is when we talk about the urban workers and the rural workers. So the ratio of the self-employed worker is, in the urban area it is 43%, but in the rural area it is 56%. And when we talk about the regular salaried employees, so in the urban area it is 42%, but in the rural area it is just 9%, only 9%. Next one is casual wage laborers. So in the urban area it is 15%, and in the rural area it is 35%, which means that कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो रेट देख रहे हैं हम लोग, अर्बन एरियाज़ में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं. बट रूरल एरियाज़ में क्या है, जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स 35% है. तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, द रेशियो इज़ 56%. मीन्स रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादातर क्या हैं, रूरल वर्कर्स क्या हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. मीन्स वो किसी के अंडर काम ना करके वो अपना बिजनेस और या अपनी फार्मिंग कर रहे हैं या अदर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज़ हो गया, तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. ओके, बट इन द केस ऑफ urban workers, so 43% is of self-employed and the 42% is of regular salaried employees. Okay, yes, so self-employed
Self employed is a major source of the livelihood in the both areas, rural and the urban areas. In rural area it is more than in urban areas, because rural area work on their own plots of land, cultivate independently. In urban areas both self employment and the regular wage salaried jobs are greater. In rural area the share of the self employment is greater, as people in these area own plots of land and cultivate independently. Okay, अगर हम लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अर्बन एरिया में 43% है और रूरल एरिया में 56% है. सो इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. ये क्या है, मेजर सोर्स है अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़ में, क्योंकि इनका जो मेजर सोर्स लाइवलीहुड का क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो जिसमें रूरल एरियाज़ में कितना है, 56% है लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, और अर्बन एरिया में कितने हैं, वो 43% है. सो इन रूरल एरिया इट इज़ मोर देन इन अर्बन एरिया. ठीक है, रूरल एरिया में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड इट इज़ मोर देन दी अर्बन एरिया. अर्बन एरिया से ज़्यादा हैं, बिकॉज रूरल पीपल वर्क ऑन देयर ओन प्लॉट. जो रूरल पीपल हैं जो विलेजेस में रहते हैं, दे वर्क ऑन देयर ओन प्लॉट. वो अपने ही फार्म पे, अपने ही लैंड पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं. एंड कल्टीवेट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, वो अपने इंडिपेंडेंटली ही कल्टीवेट भी करते हैं. बट इन अर्बन एरियाज बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर वेज सैलरीड जॉब्स आर ग्रेटर. और अर्बन एरिया में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज रेगुलर सैलरीड दोनों ही क्या है, बहुत जॉब्स आर ग्रेटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं. इन रूरल एरियाज़ the share of employment is greater as people in these area own plots of land and cultivate independently. ठीक है, रूरल एरिया में क्या है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो क्या है, ज़्यादा है. बिकॉज रूरल एरियाज़ में क्या होता है, लोगों की अपनी ही लैंड होती है, अपना ही प्लॉट होता है, और दे कैन कल्टीवेट देयर इंडिपेंडेंटली. ठीक है, वो अपने अपने लैंड पे सारे जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी रूरल पीपल है, वो अपने अपने लैंड पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है इन दी रूरल एरिया इट इज़ मोर देन दी अर्बन एरियाज़. नेक्स्ट वन इज़ कैजुअल वेज वर्क. सो इट इज़ द सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज विद 35% एज कम्पेयर टू 15% इन अर्बन एरिया. ठीक है, जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं अर्बन एरियाज़ में कितने हैं, ओनली 15%. ओके, बट इन दी रूरल एरिया इट इज़ 35%. So it is a second major source of employment. ये second major source है employment का rural areas में. Rural areas because after the self employment more people are dependent upon the casual wage laborers. So 35% क्या है rural areas में, और 15% बस urban areas में. Okay, next one is regular salaried work. It is a major source of employment in urban areas. ठीक है, अर्बन एरिया में जो रेगुलर सैलरीड हैं वो ज़्यादा है. 42% लोग क्या हैं, रेगुलर सैलरीड हैं. ओके, एज़ कंपेरिजन टू जस्ट 9 इन रूरल एरिया. 9% क्या है बस रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ टाइप की कोई जॉब अवेलेबिलिटी नहीं होती है. या तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं या तो दे आर कैजुअल वेज लेबरर्स. तो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि लोग अदर कंपनीज़ होती है या किसी और की कंपनी होती है, दे आर डूइंग देयर बिजनेस. बिजनेस क्या मीन्स उनके अंडर काम करते हैं वो, एंड दे गेट दी बेनिफिट्स और दी सैलरीज. ओके, तो रेगुलर सैलरीड में क्या है, मेजर सोर्स एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ का है, बिकॉज 42% लोग क्या हैं यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं एज़ कम्पेयर टू जस्ट 9% इन रूरल एरिया. और रूरल एरियाज़ में आपके कैजुअल रेगुलर सैलरीड कितने हैं, बस ओनली 9%. ओके, सो द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरिया इज़ डिफरेंट. ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट run factories, shops and office of various types. Moreover, enterprises in urban area require worker on a regular basis. So nature of work in urban area is different. जो nature है work का urban areas में, जो काम करने का तरीका है वहाँ पे, या किस टाइप के काम उनको मिल रहे हैं, वो क्या है, डिफरेंट है. Obviously everyone cannot run factories because हर एक इंडिविजुअल अपनी फैक्ट्रीज़ को रन नहीं कर सकता है. शॉप्स एंड ऑफिसेस ऑफ वेरियस टाइप
कि अपनी फैक्ट्री को रन करे, शॉप्स ओपन करे, ऑफिसेस को ओपन करे, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट एबल. सो मोर ओवर इंटरप्राइजेज इन अर्बन एरियाज़ रिक्वायर वर्कर ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो जो भी इंटरप्राइजेज होती हैं अर्बन एरियाज़ में, दे रिक्वायर मोर रेगुलर सैलरी पीपल. ठीक है, वो लोग क्या है, ज़्यादातर रेगुलर सैलरी जो पीपल होते हैं उन्हीं की ही दे डिमांड. ओके, उन्हीं की वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ distribution of employment in different sectors. Okay, so till now what we have discussed that the distribution of employment in the gender in rural and the male and the female, and next one is distribution of employment in the different region. In region what we have discussed that the urban sectors or the rural sector. Now we are moving to next topic, that is distribution of employment in the different sector. The sectors are the primary, secondary or the tertiary. So employment in the firms, factories or the offices. So in the course of the economic development of a country, labor flow from agriculture to industry and services. In this process, workers migrate from rural to urban areas. When the structural changes takes place, share of employment reduces in the primary sector and secondary sector and increases in the tertiary sector. This shift can be understood by the looking at the distribution of workers by the industry. All economic activities are divided into 8 industrial division. Okay, so in the course of economic development of a country, लेबर्स फ्लो फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. ठीक है, ये क्या होता है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की बात होती है कि कंट्री जब इकोनॉमिकली डेवलप करेगी तो क्या होगा कि जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स क्या हैं, जो दे ऑल आर इफ़ दे आर बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो लेबर फ्लो फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. जो भी लेबर्स है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मूव करते हैं या शिफ्ट होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्रीज़ में वो जाके काम करते हैं, एंड सर्विस सेक्टर में जाते हैं. इन दिस प्रोसेस वर्कर माइग्रेट फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया. इसलिए क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर मूव होते हैं इंडस्ट्रियल और द सर्विस सेक्टर, तो दे आर मूविंग और द माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज़. वो रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं. ओके, so when structural changes takes place, share of employment reduces in the primary sector. ठीक है, जब ये स्ट्रक्चरल जो भी स्ट्रक्चर जैसा बना है कि प्राइमरी में इतने वर्क कर रहे हैं, सेकेंडरी में इतने और टर्शियरी में इतने, तो जब माइग्रेशन होगा तो क्या होगा, ये सारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा. मींस यहाँ से पीपल क्या है शिफ्ट यहाँ हो जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो डिवीज़न हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, वो पूरा चेंज हो जाएगा. ओके, सो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस इन द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम दी प्राइमरी टू इंडस्ट्रियल टू टर्शियरी. सो प्राइमरी सेक्टर का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इन सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर का, एंड अल्टीमेटली इट इंक्रीजेज द टर्शियरी सेक्टर. अभी टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा. दिस शिफ्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय द लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय द इंडस्ट्री. ओके, अब ये जो शिफ्ट हो रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, वी कैन अंडरस्टैंड बाय द लुकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, कि जो भी वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बाय द इंडस्ट्री, वी कैन सी. सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन. ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वेदर इट इज़ फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, tertiary sector or the secondary sector, so these all are divided into the 8 different industrial division. 8 industrial division में find out होंगी. So they are agriculture sector, mining and quarrying, means mining करते हैं ना जो coals की ये सब mining, और next one is manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज. ओके, ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीज़न में किए गए हैं. फॉर सिंप्लिसिटी
all the working persons engaged in these division can be clubbed into 3 major sector. Okay, ये basically 4-8 sectors हैं, 8 ऐसे डिवीज़न किए गए हैं जहाँ पे लोगों को वर्क मिलता है. बट सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया जाता है, 3 सेक्टर में इनको डिवाइड किया जाता है. ये जो सारे 8 हैं इनको क्या किया जाता है कि 3 जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसमें क्या किया जाता है, क्लब्ड कर दिया जाता है, एक साथ कर दिया जाता है, सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ गया आपके, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ओनली एग्रीकल्चर. ओके, फर्स्ट वन. सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, and the construction. These all come into the secondary sector. Now the service sector, which include division of trade, transport and storage and the services. These all are belongs to the service sector. And the mining, quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, these all comes under the secondary sector, and the agriculture sector comes in the primary sector. Okay, so इसी में क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट सेक्टर्स में कर दिया गया है. द सेक्टर्स आर दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शियरी. ओके, इसी में लोगों का ये देखा जा रहा है कितने इंडिविजुअल जो प्राइमरी में वर्क कर रहे हैं, जो सेकेंडरी में वर्क कर रहे हैं, एज वेल एज जो टर्शियरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं. ओके, so let's see a table of distribution of employment in the different sectors. So what we will see, table below show the distribution of working person in different industries during the year. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि different industries में लोग कैसे काम करें. इंडस्ट्रियल कैटेगरी मीन्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, रूरल सेक्टर में और अर्बन सेक्टर में, और अकॉर्डिंग टू सेक्स मीन्स कि वो मेन हैं कि वीमेन हैं, और टोटलिटी की बात हो रही. तो प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरियाज़ में कितने लोग हैं, 64.1, अर्बन में कितने हैं, 6.7. ओके, और सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, 20.4, और टर्शियरी सेक्टर में है 15.5. विच मीन्स अगर हम रूरल एरियाज़ की टोटलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग किस में वर्क कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, बिकॉज 64.1% है. दिस डेटा इज़ फ्रॉम 2011-12 का डेटा है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर में 64.1% है, सेकेंडरी सेक्टर में 20.4 और टर्शियरी सेक्टर में 15.5 रूरल एरियाज़ में. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज़ में, तो अर्बन एरियाज़ में देखिए 6.7 लोग ही प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 35% एंड टर्शियरी और द सर्विस सेक्टर में 58.3. तो जस्ट अपोजिट ऑफ द रूरल. अर्बन क्या है, जस्ट अपोजिट है. प्राइमरी का 64 है तो इसमें टर्शियरी का 58.3 है. फिर सेकेंडरी का 20 है तो इसका 35 है, एंड टर्शियरी का 15.5 तो इसका 6.7. ओके, ये क्या शो कर रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लोग कितने ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं. एंड व्हेन वी कंपेयर इट फॉर दी अलॉन्ग विद द सेक्स, तो मेन एंड वीमेन, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, मेन कितने हैं एम्प्लॉयड है, 43.6%, सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, 25.9%. आप लोग समझ गए ना, प्राइमरी मीन्स एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मीन माइनिंग एंड क्वेरिंग, टर्शियरी मीन्स कम्युनिकेशन, ट्रेड्स, दीज ऑल आर दी टर्शियरी सेक्टर. तो इसमें क्या है, मेन क्या है, 43.6% है आपके प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में है 25.9 और टर्शियरी सेक्टर में है 30.5. मेन आर बिलोंगिंग टू अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा मेन क्या करते हैं, वर्क करते हैं. ओके, और सेकेंडरी में सबसे कम, इसके बाद टर्शियरी में करते हैं, एंड आफ्टर डैट सेकेंडरी में करते हैं. पहले पे प्राइमरी, देन टर्शियरी एंड देन सेकेंडरी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विमेन, तो 62.8% क्या हैं, विमेन काम करती हैं प्राइमरी सेक्टर में. ओके, 20% किस में काम करती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, और 17.2% काम विमेन किस में करती हैं, टर्शियरी सेक्टर में. ओके, ये क्या शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेक्टर, के डिफरेंट सेक्टर में कैसे
ये डिवीज़न हुआ है। तो टोटलिटी की बात करते हैं हम लोग तो 48.9% है, 24.3% है। अगर टोटल की बात करें, देखिए टोटल की बात करें तो 48.9% किसका है, एग्रीकल्चर का, 24.3 है परसेंट आपका सेकेंडरी सेक्टर का, और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 26.8। तो सबसे ज़्यादा वर्क लोग किसमें कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, एंड देन टर्शरी सेक्टर में, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, सो द अबव टेबल shows that primary sector is the major source of employment for the majority of worker in India. About 49% of the workforce in primary sector. Tertiary sector is the next main source of the employment with about 27% of workforce, and the secondary sector provides employment only to 24% of workforce. Okay, let's see here. ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, वो मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। मीन सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड किस में हैं, प्राइमरी सेक्टर में हैं। सो 49% ऑफ वर्कफोर्स किस में है, प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर में क्या है, नेक्स्ट मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या है 27% लोग, 26.8 मीन 27% लोग टर्शरी में काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में। एंड सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 24% ऑफ वर्कफोर्स। उस वर्कफोर्स का 24% लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ओके, रूरल एरियाज़ में देखिए 64% लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, एज अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया ओनली 7%। और अर्बन एरियाज़ में बात करते हैं तो बस 7% लोग क्या हैं, प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रियल इज़ नॉट मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर दी पीपल इन द रूरल एरिया। ठीक है, जो भी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट के इन दी सेकेंडरी सेक्टर, एज अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया इज़ अबाउट 35%। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में बस 20% कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अर्बन एरियाज़ में कितना हो रहा है, 35% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्विस सेक्टर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन द अर्बन एरिया। जो पीपल अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए सर्विस सेक्टर क्या है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ओके, लेट्स सी, सर्विस सेक्टर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन द अर्बन एरियाज़, about 60%, 58.9, about 60% the people are working in the urban areas, urban areas tertiary sector, as against employment in rural areas only 15%। और अगर हम लोग टर्शरी सेक्टर में बात करते हैं अर्बन में, तो ओनली 15% पीपल क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। both men and women worker are concentrated in the primary sector, women workers concentration is very high there. About 63% of the female worker is employed in the primary sector, less than half of the male work in that sector. Okay, so men get opportunities in the both secondary and the service sector. Okay, so the both men and women worker are concentrated in primary sector. ठीक है, जो men है और women है, both are more concentrated on the प्राइमरी सेक्टर। विमेन वर्कर्स कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई देयर। विमेन का कंसंट्रेशन क्या है, 68.2, अराउंड 63% लोग विमेन वहाँ पे वर्क कर रही हैं। अबाउट 63% ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, विमेन का क्या है 62.8 मीन्स 63% फीमेल वर्कर प्राइमरी सेक्टर में, वेयर एज लेस देन हाफ ऑफ द मेल्स वर्क इन दैट सेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या है, लेस देन हाफ, मतलब उसका हाफ का पर्सन क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग दी वर्क इन दैट सेक्टर, इन द प्राइमरी सेक्टर। मेन गेट अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ सेकेंडरी एंड द सर्विस सेक्टर। जो मेन है वो क्या है, दोनों ही सेक्टर में, सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में को क्या कर रहे हैं, दे आर गेटिंग दी मोर अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स यहाँ पे देखिए 25% एंड दी टर्शरी सेक्टर इज़ अबाउट 30%। सो मेल मेंबर और दी मेन क्या हैं, दे आर गेटिंग दी अपॉर्चुनिटीज़ इन
doing the work in the both secondary as well as service sector. Now the next topic is the growth and changing structure of the employment. So there are two main developmental indicators to expand an economy. मतलब ये क्या कह रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का उसमें कैसे ग्रोथ हो रहा है और जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मींस प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, ये जो चेंज कैसे हो रहा है. सो इस टॉपिक में हमें यही डिस्कस करना है. सो देयर आर टू मेन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स टू एक्सपैंड एन इकॉनमी. ठीक है, अगर इकॉनमी को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए टू मेन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है. टू ऐसे डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी इकॉनमी को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मीन्स मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे तो क्या हो सकता है, कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है. एज वेल एज ग्रोथ ऑफ GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर हम लोग ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा, इसके थ्रू भी डेवलपमेंट कंट्री का होगा. ओके, सो दीज टू मेन developmental indicators are there. First one is growth of employment and the growth of gross domestic product. Okay, so since 60 years of the planned development, India aimed at expansion of the economic through the increase in national product and employment. Okay, since 60 years of planned development. ठीक है, planned development का 60 years होने के बाद भी since तब से क्या इंडिया एम्ड एट द एक्सपेंशन ऑफ द इकॉनमी. इंडिया क्या करी, एम करी है कि इकॉनमी को एक्सपैंड करना है थ्रू द इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट. कैसे इंक्रीज़ करेंगे कि जो भी नेशनल प्रोडक्ट है मींस NNP है जो हमारी कंट्री का, उसको और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करके. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 2010, व्हेन वी टॉक अबाउट 1950 टू 2010, GDP ऑफ इंडिया इज़ ग्रोइंग पॉजिटिवली. ठीक है, जो इंडिया की GDP है वो पॉजिटिवली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. रेंजिंग बिटवीन दी 4% टू 7%. ठीक है, इंडिया की GDP पॉजिटिवली ग्रो कर रही है 4% से 7% तक. एंड वॉज हायर देन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ रेट से ये ज़्यादा है. मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट 2% हो रहा है तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 4% हो रहा है. सो हाउएवर देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन ग्रोथ ऑफ GDP. ठीक है, बट ये क्या होता है कि जो ग्रोथ ऑफ GDP है, जो GDP रेट होता है 2% से ग्रोथ कर रहा है, 10% से ग्रोथ कर रहा है, तो इंडिया में क्या ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है. मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 से 8 हो सकता है. तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट स्टेबल रेट ऑफ अबाउट 2%. ठीक है, जब वी आर टॉकिंग अबाउट दी पीरियड ऑफ द 1950 टू 2010, तो इस पीरियड में क्या था, जो एम्प्लॉयमेंट ग्रू कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही थी वो क्या थी, उसका रेट क्या था, स्टेबल था. वो स्टेबल क्या था, बस 2% से ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही थी. और जब हम लोग GDP की बात कर रहे थे तो GDP क्या कर रहा था, वो फ्लक्चुएट कर रहा था बिटवीन 4% टू 7%. इन दोनों के बीच में क्या कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था. ओके, सो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज वाइडनिंग गैप बिटवीन दी ग्रोथ ऑफ GDP एंड एम्प्लॉयमेंट. इन पीरियड के बीच में मीन्स 1950 और 2010. ठीक है, इन दोनों के गैप के बीच में क्या था, ये जो हमारा गैप था ग्रोथ ऑफ GDP एंड एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा हो गया था. मतलब उनके गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे. मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट था वो तो 2% ही था, बट जो GDP था वो क्या था, बहुत फ्लक्चुएट करा था बिटवीन 4 to 7%. ओके, तो इन दोनों का गैप जो था कि एम्प्लॉयमेंट और GDP का जो गैप था वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था. इट मीन्स दैट इन द इंडियन इकॉनमी वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. इसमें ये क्या था कि इसका यही मतलब है कि इंडियन इकॉनमी में हम क्या कर सकते हैं, वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ करेगी, बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। बिना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किए हमें क्या करना था, हम मोर गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज़ कर सकते थे। दिस फेनोमेनन इज़ रेफर टू एज जॉबलेस ग्रोथ। इसी फेनोमेनन को क्या करते हैं, कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कि ग्रोथ तो हो रहा है कंट्री में, जीडीपी इंक्रीज़ कर रही है, बट जॉब क्या हो रही है, वो जॉब में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ओके, सो thus jobless growth refer to a situation when the economy is able to produce more goods and services without corresponding increase in the level of employment। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है व्हेन द इकोनॉमी इज़ एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी किस कंडीशन में है, सिचुएशन में कि वो और से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके करस्पॉन्डिंग में बिना एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ किए कंट्री क्या कर सकती है, मोर गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज़ कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड दी जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो हो रही है कंट्री में, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, बट देयर इज़ नो इंक्रीमेंट और देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। दैट्स वाई दिस सिचुएशन और दिस condition is phenomenon is called the jobless growth। Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.